Hello students, welcome back to our online classes with Best English School and with me your science teacher students. So students, in this topic nutrition in animal we are talking right now. That's great, right? So I have already completed the half chapter of this I have part of this chapter. So today we will start the stomach, the small intestine part. So in the last video, I have given you some homework to draw the diagram, students. So I hope that you have completed your homework and you have drawn a beautiful diagram in your notebook, students. So let's begin. We will not waste our time because time is very much precious for ourselves, students. So let's begin our subject science. Chapter name is nutrition in animals. The topic is we will like to start is the stomach, students. So let's begin. The stomach. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into similar substances. So this one we have read about the stomach. Now I will explain you that. The students, stomach is a thick wall bag. जो हमारा पेट है, पेट को हम लोग stomach बोलते हैं. तो the stomach is a very thick wall bag and it shapes like a J. J जो alphabet है उसके जैसा उसका shape होता है, students. And it is very much widest broad in the alimentary canal. It receives food from the food pipe. फूड हमें स्टोमक में जाता है with the help of the food pipe and at the end and then it opens into small intestine at the other. See, I would like to see you in the diagram which I have told you to draw it. I hope that you have drawn it. So this one. See, this one, the whole part. See, this one is the pipe, right? And this pipe has been gone to our body, our food processing, and this will go into a small intestine, right? This one is the small intestine. So by the process of the small intestine, then it goes to the long intestine, and then that will go on throughout the waste product over there. So this one is the whole process of the intestine and this one is the stomach, student. Okay. So stomach, I have a collection of the food that we eat and the food is necessary for ours, right? The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. See, the inner lining of the stomach, जो अंदर का पार्ट है स्टोमक के, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस. सी, हम लोग जो स्टोमक में जाते हैं वो पूरा का पूरा जूस बन जाता है, राइट? जिस शेप में और जिस प्रोसेस में हम लोग उसके बनाए हुए होते हैं या जो शेप में हम लोग फूड खाते हैं वो शेप सिमिलर नहीं रहता है. स्टोमक में वो एक जूस बन जाता है. वही एसिड हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया से जो हमारे बॉडी के अंदर होता है. द फूड दैट वी ईट हैविंग अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ एसिडिक एंड दैट हेल्प्स द डाइजेस्टिव. जो हम लोग के अंदर जो जूस बनता है वो हमें हेल्प करता है फूड डाइजेस्ट करने में
and the digestive juices break down the proteins into similar substances. ये जो digestive juice हम लोग बनता है हमारे बॉडी में, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे स्टूडेंट्स, तो वो हर अलग अलग पार्ट में प्रोटीन्स सब्सटेंस भेजता है. ब्रेक डाउन द प्रोटीन सब्सटेंस. अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट्स इन आवर बॉडी, देयर आर अ लॉट ऑफ पार्ट्स, राइट? So they have been divided into the different parts, and they are having the proteins, students. So that's the reason our body works so properly, students. Now we will discuss about the small intestine. The small intestine is highly collated in about 7.5 meter long. So our small intestine is 7.5 meter long, students. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secretes juices. So हमारी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से सिक्रेशंस होते हैं? लीवर और पेनक्रियाज से. आप डायग्राम में देख सकते हो इजीली, स्टूडेंट्स. एंड उससे जो सीक्रेट जूस बनता है वो हमारे बॉडी में बाय अ वेव्स जाता है, स्टूडेंट्स. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. So students, the liver have been situated in the upper part. Right side में ऊपर की भाग में हमारे लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी ऊपर. देन वो क्या करता है, एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है. और ये जो बाई जूस होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे फैट को डाइजेशन करने के लिए. जो हम लोग खाते हैं वो चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बाइल जूस, स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, and proteins and changes them into similar forms. So students, what happening? The pancreas, जो ये हमारे बॉडी में pancreas है, वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. जो स्टोमक के थ्रू हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है जूस, उसको प्रोसीड करता है. जो ये पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के थ्रू चेंजेस होते रहते हैं और अलग अलग सिमिलर फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं. सी, सो वी कैन से दैट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स चेंजेस देम इनटू अ सिमिलर फॉर्म. अलग अलग फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, स्टूडेंट्स. समझे आप? नाउ वी विल डिस्कस, फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस वन, देन वी विल डू दैट वन. सी, the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into similar sugar such as glucose, fats into fatty acids, and glycerol and proteins into amino acid. So students, what happening is that the partly digested जो हमारा फूड है वो लोअर पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आके वो एकदम जूस बन जाता है, कम्प्लीटली जूस, जो डाइजेस्टिव ऑफ ऑल द कॉमन ऑफ द फूड, फूड के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सबसे डाइजेस्ट होकर तब वो कार्बोहाइड्रेट से आके शुगर सिरप बन के ग्लूकोज जैसा प्रोटीन हो जाता है. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको छोटे छोटे स्मॉल शुगर्स में, फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड. मतलब इसमें ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोग ग्लिसरॉल पी रहे हैं या होता है हमारे बॉडी में, उससे क्या होगा,
हमारे जो प्रोटीन्स होती है वो अमीनो एसिड्स में ट्रांसफ़र होके एक अमीनो एसिड का प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके थ्रू हमें बहुत ईज़िली पता चलेगा कि हमारी बॉडी डाइजेस्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है स्टूडेंट्स. ओके, now we will discuss this one. This is a very knowledgeable fact. We should know it about Alexis Saint Martin's shotgun wood. See, let's read this one. The working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alex Stent Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American Army doctor, William Bunont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. Beaumont found that the stomach was cleaning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. So students, in this one, this message is given to us that there was a person whose name was Alex Stent Martin and he was badly शूट गन. मतलब ये जो आपको पिक्चर देख रहे हो इसमें यहाँ पे जो गन वहाँ पे उसे शूट हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, उसके स्टोमक में एक होल बन चुका था. सो ही हैड वेंट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट. डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट ने उसकी सारी बैंडेज लगाया, उसका देखभाल किया. तो उसके क्या हुआ कि होल जो उसका होल है उसको प्रॉपरली वो कवर नहीं कर पाए, क्लोज नहीं कर पाए. तो ब्यूमेंट ने टुक एडवांटेज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब ब्यूमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो स्टोमक के अंदर देख सकता है विद द हेल्प ऑफ द होल कि अंदर हो क्या रहा है. तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की स्टूडेंट कि हमारा जो ये स्टोमक है, जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है. एंड एट द एंड स्टोमक और इंटेस्टाइन डाइजेशन फूड को स्टोमक तक में कंप्लीट करके ले आता है. ये पूरा का पूरा उसने ऑब्ज़र्व किया होता है और वो उसके बाद ये चीज़ को बोलता है सभी लोगों को, तभी जाके हमें ये बात पता चलती है. स्टूडेंट्स, समझे आप स्टूडेंट्स? Students, now we will see absorption in the small intestine, students. So let's read this part. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. So students, the digestive food, the food that have been digested, now that have been passed in blood vessels. जो food digest हो चुका है वो food अब blood vessels में गया through the help of the wall of the intestine. And this whole process is called absorption. This absorption means the food that have been gone to the blood vessel, then it gone to the intestine. This process is known as absorption, students. So the inner wall of small intestine have thousands of fingers, means thousands of fingers are there. बहुत सारे टाइप के फिंगर्स है और इस फिंगर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वीली. सिंगुलर विलस मतलब एक सिंगल विलस, सिंगल मतलब एक ही चीज़, VILLI विली. सो द इनर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका अंदर भाग में बहुत सारे फिंगर्स बने हुए हैं. मैंने आपको दिखाया था राउंड एंड राउंड सांप जैसे थे स्टूडेंट्स, तो उसको विली बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सी
Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food. So students, can you tell me ये जो villi है, ये विली का क्या रोल है हमारे इंटेस्टाइन में? तो ये जो विली है वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया, जो हमारे पेट में जो फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस है, राइट? तो वो प्रोसेस करने के लिए एक सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे ये जो फूड होता है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। और ये ईच व्हीलस हैज़ अ नेटवर्क, एक सारे के सारे ये जो व्हीलस है वो एक कनेक्टेड है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स में, मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में ये कनेक्टेड है। तो और इसकी जो सरफेस है व्हील की, वो क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है स्टूडेंट्स। एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल स्टूडेंट्स। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine, students. So, what happening, the food would be digested with the over the surface area of the villi, right? So then students, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो खाना एब्जॉर्ब कर लिया है वो ब्लड वेसल के थ्रू, ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल को थ्रू बहुत बहुत अलग अलग ऑर्गन्स में बॉडी में थ्रू चले जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। एंड सच एज दैट इज़ प्रोटीन। ये जो है प्रोटीन है जो हमारे होल बॉडी में काम आता है। तो मतलब ये छोटे छोटे वेसल्स में बनते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, जिसके थ्रू सारी बॉडी में प्रोटीन्स मिलता है स्टूडेंट। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। देन आफ्टरवर्ड्स इन ईच सेल, आप लोग को पता ही है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज हैव बीन ब्रेक डाउन। जो ग्लूकोज होती है जिससे हमें ताकत मिलती है, वो ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी इज़ रिलीज्ड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है, हट जाता है, जिसके थ्रू जो फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू चला जाता है स्टूडेंट्स। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को इंटर करने देता है अपने अंदर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी large intestine. So large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. So students, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी, अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर, बहुत चौड़ा और शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह। ये 1.5 मीटर लेंथ में, लंबाई में बड़ा है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट्स और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में
आता है स्टूडेंट्स। द रिमेनिंग जो बाकी जो वेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ खाना जो एब्जॉर्ब हो चुका है, जो चीज़ हमारे बॉडी में विटामिन देती है वो सब चीज़ें बॉडी में आ चुकी है, और जो चीज़ का यूज़ नहीं है वो फिर क्या होता है, वो सारे मटेरियल कहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट में पास होके रेक्टम से होके ये एक सेमी सॉलिड फीसेस बन जाता है। और ये जो फीसेस मैटर क्या करता है, एनस के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट टाइम टू टाइम निकल जाता है, राइट। और ये पूरे प्रोसेस को एजिशन प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट, EGESTION, एजिशन। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है स्टूडेंट एनस के through. Okay, now we will discuss about the 2.3 digestion in grass eating animal। जो एनिमल ग्रास खाते हैं उनके डाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो हैव यू ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। सो स्टूडेंट्स, हमने कभी एब्जॉर्ब किया है जैसे कि काव, बफेलो, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं वो सब कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं अपने खाने को, तो वो क्या डाइजेस्ट होता है या वो खाना खा सकते हैं? दे आर नॉट ईटिंग, मतलब वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो लोग जो ग्रास खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काव एंड बफेलो, वो जो ग्रास खाते हैं वो उनके टिथ में वो च्वेलिंग करते रहते, क्विकली स्वॉलो करते कि वो ग्रास स्मूथ हो जाए एकदम, और वो उसके बाद स्टोमक में इट इज़ स्टोर, उसके पेट में स्टोर हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूमेन बोलते हैं, RUMEN, रूमेन बोलते हैं। ओके, here the food gets partially digested and is called curd। जो फूड होता है वो partially digest हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं, CUD, curd। But later the curd returns to the mouth and in small lumps and the animals chew it। This process is called rumination, and these animals are called ruminants। So what happens students कि ये जो बाकी अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो नब के थ्रू माउथ में आता है और छोटे छोटे करके एनिमल्स चॉ करते हैं, मतलब चबाते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो कंटिन्यूस उनके मुंह चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो इनका जो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। ओके, so rumination is the process name and ruminants is the animal who is eating with that process students। Okay, now the grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose। Many animals including humans cannot digest cellulose। So students क्या बोल रहे हैं इसमें? See, the cellulose is also a very good protein that is very good, we get it from the grass। जो ग्रास खाते हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा सेलुलोस मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कैटल, डियर एक्सेट्रा। और इनकी जो बैक्टीरिया होती है, जो रूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, वो हेल्प करती है उनको डाइजेस्ट करने में। वो क्या करती है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है सेलुलोस। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जो नहीं खा सकते हैं जिसमें ग्रास, जिसमें से हम लोग एक है। ह्यूमन्स आर वन ऑफ देम हु कांट ईट द ग्रास बिकॉज दे डजंट हैविंग कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस, दे कांट डाइजेस्ट सेलुलोस। और ग्रास में बहुत ज़्यादा सेलुलोस पाया जाता है स्टूडेंट्स।
Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cascum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. So students, जो एनिमल्स है जैसे कि हॉर्स, रैबिट, जितने भी एनिमल्स है उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा क्या होता है, सेइसम होता है, CAECUM, जो ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है. क्या होता है ये जो वर्ड है CAECUM, सेइसम किसके बीच में होता है स्टूडेंट्स? ऐसा क्वेश्चन आपसे इजीली पूछा जा सकता है. ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जो एनिमल्स में ही पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस और रैबिट स्टूडेंट्स. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. ये जो सेलुलोस होता है जो फूड में पाया जाता है वो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको कट कर देते हैं, उनको खिलाफ चले जाते हैं, उनको मार डालते हैं. बट ये चीज़ हमारे ह्यूमंस में नहीं होता है. ह्यूमंस में ये चीज़ नहीं है हमारे पास. क्या नहीं है? सेलुलोज नहीं है स्टूडेंट्स. समझ गए? So far you have learnt about animals which process the digestive system. अब हमें पता चल गया कि एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे किया जाता है. But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो फिर वो लोग कैसे डाइजेस्ट फूड करते होंगे? ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, राइट? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. अब जो नेक्स्ट पार्ट है 2.4, इसमें हम लोग कुछ न्यू पता करेंगे कि जिनके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं तो वो अपना फूड किस तरह से बनाते होंगे स्टूडेंट्स. ओके, now we will see 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा. आप लोग ने ये वर्ड इजीली सुना होगा, अमोएबा. एंड अमोएबा आप पिक्चर में देख सकते हो इजीली स्टूडेंट्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन, अमोएबा, AMOEBA, अमोएबा. So amoeba is a microorganism, single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food students. So now in this topic we will discuss about the amoeba. So students, amoeba is a microscopic single celled. ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड है, एक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ पॉन्ड वाटर में ही पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में ही होते हैं. मोएबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो राउंड कलर का होता है स्टूडेंट्स. ओके, एंड हैविंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो, जिसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं. आपको पता है ना बबल्स, आप इसमें देख सकते हो फोटो में. ये जो पिक्चर दिया गया है न्यूक्लियस, ये जो है ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे हैं वो. और ये जो चीज़ है ये फूड पार्टिकल्स है जिससे डाइजेशन सिस्टम उनके अच्छे से होता है स्टूडेंट्स. और इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको. ओके, एंड अमोएबा, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. अमोएबा अपने शेप और पोजीशन कैसे भी चेंज कर सकते हैं. उनकी कोई डिफिनेट शेप और डिफिनेट पोजीशन नहीं होता है. वो कभी भी एक या उससे भी ज़्यादा फिंगर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं ईजीली स्टूडेंट्स. और उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं.
अब आप इसमें बोलोगे कि मैम इसमें तो पी है आगे, तो आपने पीसोइडोपोडिया क्यों नहीं बोला? तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो वर्ड है इसमें पीसोइडोपोडिया नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इस वर्ड में पी साइलेंट है, इसलिए हम लोग इसको सूडोपोडिया ही बोलेंगे. बट स्टूडेंट्स, वेन एवर यू विल राइट द स्पेलिंग, यू हैव टू राइट द पी, बिकॉज वाइल राइटिंग द स्पेलिंग पी इज नॉट silent, but when we will discuss or when we will talk about it, then p is silent. So that's why we will discuss and pronounce it this word as a pseudopodia, students. Okay, so over here you can see there is a pseudopodia. This one is pseudopodia, students. Okay, why the amoeba have a false feet? वो अपने false feet के थ्रू मूवमेंट करती है और वो अपने खाने को कैप्चर कर लेती है. मतलब ऑब्वियसली अमोएबा के कोई तो शेप है नहीं, राइट? तो अमोएबा तो कोई भी शेप में जाके कैसे भी करके एक से ज़्यादा भी फॉल्स फीट बना के मूवमेंट कर सकती है और कैप्चर कर सकते हैं फूड को, अपना खाने को खुद से खुद कैप्चर कर सकता है. सो सी इन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज़ अ फूड वैक्यूल. ये जो पार्ट है इसको फूड वैक्यूल बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू चेंजेस होते हैं. और दिस वन इज़ द इजेस्टेड वेस्ट. ये जो इजेस्टेड वेस्ट क्या होता है, यहाँ से पहले फूड वैक्यूम गया, उसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है यहाँ पे आया, फिर उसके बाद फिर ये सर्कल में आया एंड उसके बाद ये लास्ट सर्कल में आया. तो ये जो लास्ट सर्कल है उसको क्या बोलते हैं, इजेस्टेड वेस्ट. जो वेस्ट होता है वो यहाँ से निकल जाता है अमोएबा का, स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये पार्ट अमोएबा, AMOEBA, अमोएबा, स्टूडेंट्स. नाउ वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट amoebas. Let's see. See, amoeba feeds on some microscopic organism which seems food. It pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. So students, मैंने आपको बताया अभी ये वाला प्रोसेस कि ये जो लाइन है इसके थ्रू फूड वैक्यूल से लेकर इजेस्टेड वेस्ट तक वो चला जाता है और फूड निकल जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो. तो स्टूडेंट्स, अमोएबा क्या करता है कि सूडोपोडिया के थ्रू वो फूड को सेंस कर लेता है और सूडोपोडिया के वहाँ पे पुश करता है. पुश करके जो फूड होता है वो ट्रैप हो जाता है, कहाँ पे, इनगल्स में. और वो फूड ट्रैप हो गया तो वो फूड वैक्यूल में चला जाता है. FOOD फूड वैक्यूल, VACUOLE, फूड वैक्यूल में चला जाता है. Then the digestive juice have secreted into food vacuole. जो digestive juices वो जूस बन जाता है और वो क्या करता है, फूड वैक्यूल में उसको जाने देता है. Then they act on the food and break it out into similar substances. फिर ये जो फूड वो खाते हैं वो अपने अलग अलग पार्ट में जाने देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक हो जाता है. जैसे हमारे बॉडी में होता है, जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए वहाँ पे चला जाता है, इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो निकल जाता है. सिमिलर एज दैट, इसी तरह भी उनके छोटे छोटे सिमिलर सब्सटेंस बन जाते हैं. ग्रेजुअली दिस डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब. तो जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है खाना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी बॉडी में, स्टूडेंट्स. ओके, नाउ दिस वन इज़ द लास्ट पैराग्राफ वी विल टॉकिंग अबाउट. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, maintenance and multiplication. The undigested residual of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine in the various parts of the food. सो स्टूडेंट्स, व्हाट्स इट हैपनिंग, जो एब्जॉर्ब फूड होता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होता है, उससे क्या होता है
ग्रोथ बढ़ेगा, जो खाना हम लोग खाते हैं उससे ग्रोथ बढ़ेगा, वो अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, और मल्टीप्लिकेशन चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूल ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। वैक्यूल के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है अमोएबा का, वो निकल जाता है स्टूडेंट्स इजीली। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, फूड डाइजेस्ट करने का, वो क्या देता है हमें, एनर्जी देता है। किसको, एनिमल्स को एनर्जी देता है। जैसे हमें एनर्जी मिलती है खाने खाने से, वैसे एनिमल्स को भी खाना खाने से एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो अब ये पार्ट हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस तरह से एब्जॉर्व कर लेता है इंटेस्टाइन के थ्रू, हम लोग इस बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा ये चीज़। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये पार्ट सेलुलोस वाला। सी, दिस इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। आप ये दे सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। सो देयर इज़ एन ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस वन इज़ रूमीन। ये जो है वो रूमीन है, ये उनके स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये है ओइसोफोगस। फूड पाइप भी इसे आप बोल सकते हो। ये जो पार्ट है ये स्टोमक है स्टूडेंट्स, ओके। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट है सीएसम, ओके। एंड ये जो लास्ट पार्ट है ये है लार्ज इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स, ओके। So this one is your also digestive system of ruminant. Ruminant मैंने आपको क्या बताया था, जो लोग ruminants होते हैं उनको ruminant, जो animals ruminants होते हैं उनको ruminants बोला जाता है, like cow, buffalo and etc animals who is eating their whole thing in this process students. So this one is very much important. And students ये आपको होमवर्क करके आना है। आपको ये जो होल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। आप ये देख सकते हो इजीली, ड्रॉ डायग्राम, ओके। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, digestive system of ruminant. This one is your homework students, okay. And one more thing is homework, that you have to read full chapter twice or thrice time, okay students. That is an essential for you to read the chapter, because when you will read the chapter then only you can understand that what does it mean students, okay. So now I will see you in the next video with the third chapter, okay, the fibers. Still there, read the chapter, focus in the science subject. If you are interested more to learn, you have to watch my video all the time. And you have liked my video, so students, please wake up and subscribe my channel, like my video and comment it down if you have any query about it students, okay. So till there students, I will see you in the next video. Bye bye and have a nice day students.